Good morning, my dear student. This is Amit Tripathi. Guys, you are welcome in my today class. I hope you all are safe, fit, and fine at your place. Dear student, in previous classes we have discussed some topics of this chapter. I hope you all are come in today class with complete revision of the previous topic. And today topic is the most important topic for your numerical questions. The topic is the motion of object under the influence of gravitational force of earth, or you say this topic is also known as the motion of object under the gravity, right? I hope you all are know very well what is the gravitational force, what is the gravity, and what is the difference between them, and what is the formula. You all are know very well, I hope. So we are going to start your today topic, that is the motion of object under the influence of gravitational force of earth. Before starting this chapter, I want to remind you the some equation of motions which we have learned in chapter number 8, that is the motion, that means the first chapter of the physics portion. There are three equation of motions. I hope you all are know very well. The first equation of motion, that is V is equal to U plus AT. Second is the S is equal to UT plus half AT square, and third is the V square is equal to U square plus 2AS. This is the three equation of motions, and I hope you all are know the symbol which is used in these three equations. You all are know very well. The first is the U, that is known as the initial speed or initial velocity. V is the final speed or final velocity. A is the acceleration, and S is equal to distance or displacement, and T is the time taken by the object. Clear? What is the change in this equations? क्या आप इसमें चेंज करेंगे? चेंजिंग क्या होगी? You all are know एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज द स्मॉल जी, ये रिप्लेस होगा किससे? रिप्लेस होगा ए से. एंड एस, दैट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, इज आल्सो रिप्लेस्ड बाय द एच, दैट इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. क्यों? क्योंकि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को आइदर यू थ्रो द इन अपवर्ड डायरेक्शन और यू ड्रॉप द ऑब्जेक्ट फ्रीली फ्रॉम ए सम हाइट. क्लियर? यहाँ पे एस की वैल्यू किससे चेंज हो जाएगी? एस से. बट एक्सीलरेशन के कॉन्सेप्ट को एक बार मैं फिर से रिमाइंड करवाना चाहूँगा. अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, वो रेस्ट पोजीशन में है, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट पोजीशन. इन दिस कंडीशन यू टेक द इनिशियल स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 0, और ये एक आफ्टर टी इंटरवल ऑफ टाइम इसकी वेलोसिटी जो फाइंड आउट हो रही है वो क्या है? v. दैट मीन्स वेलोसिटी इसकी चेंज हो रही है. तो आपको पता है एक्सीलरेशन a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन में t, दैट मीन्स चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम. अब इसकी वैल्यू आप पॉजिटिव कब लेंगे, कब निगेटिव लेंगे? इसकी वैल्यू आप पॉजिटिव कब लेंगे? जब चेंज इन वेलोसिटी, दैट मीन्स फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो? फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू इनिशियल से ग्रेटर हो. और नेगेटिव क्या होगा? जब v की वैल्यू लेस देन हो किससे? इनिशियल वेलोसिटी से. ये मैंने सब कुछ आपको ऑलरेडी बता रखा. और वेलोसिटी इंक्रीज कब करेगी? जब आपका फोर्स किस कंडीशन में लगेगा? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. और इसमें क्या होगा? जब फोर्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. क्लियर? क्लियर है गाइस? चलिए, ये तो मैंने आपको रिकॉल करवा दिया. अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, वहां से आप कैसे डिस्कस करेंगे. तो मैं यहाँ पे राइट करता हूँ जनरल इक्वेशन. आप भी कॉपी में सेम ऐसे ही लिखेंगे. जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन. जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन. द फर्स्ट इज द v इज इक्वल टू u प्लस at. सेकेंड इज s इज इक्वल टू ut plus half at square, and third is v square is equal to
यू स्क्वायर प्लस 2as, राइट गाइस। देन चेंज आप क्या करेंगे, चेंजिंग इसमें क्या होगी, इसमें चेंजिंग जो होगी वो चेंज होके आपका जो इक्वेशन ऑफ मोशन of object under the gravity, changing क्या होगी, a is changes by the small g, that means acceleration is changes by the acceleration due to gravity, and displacement or distance is changes by the s, that is the height of the object। तो इक्वेशन आपका फर्स्ट क्या हो जाएगा, v is equal to u plus, यहाँ पे क्या है, a is replaced by the small g, that is the acceleration due to gravity, this is the first equation। second is s is replaced by the h, that is h is equal to ut plus half at, that means gt square, and equation number third is v square is equal to u square plus 2gh, राइट। सारे सिंबल आपको पता चल रहे होंगे है क्या, मैं एक बार यहाँ आइडेंटिफाई भी कर देता हूँ। u इज द इनिशियल स्पीड, v इज द फाइनल स्पीड, g इज इक्वल टू द acceleration due to gravity, t is time, and h is the height of the object। क्लियर। तो गाइज ये आपका इक्वेशन था, और ये इक्वेशंस आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं अगर आपको इक्वेशन ऑफ मोशन पहले से क्लियर होगा तो, और नहीं होगा तो फिर भी मैंने आपको एक बार क्लियर करवा दिया है, एक बार आप इसको फिर से देख लीजिए, समराइज कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए इसमें हम कुछ स्पेशल केस लेंगे, उस कंडीशन में u, v और h की वैल्यू आप क्या यूज़ करेंगे, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में मोशन में बता रखा था, व्हेन द ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, दैट मीन्स द इनिशियल स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 0। जो भी इक्वेशन आप सॉल्व करेंगे अगर उसमें u की वैल्यू पुट करनी है तो अंडरस्टूड है उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। आपने अप्लाइड द ब्रेक ऑन द ऑब्जेक्ट, जब आपने ब्रेक अप्लाई किया था तो उस कंडीशन में क्या होता था, एक्सीलरेशन निगेटिव होता था, दैट मीन्स a की वैल्यू कुछ भी दी रहेगी वो वैल्यू क्या होगी, निगेटिव साइन के साथ आप इसमें पुट करेंगे, राइट। क्लियर है गाइस। और ऐसे ही आपको यहाँ पे भी फाइंड आउट करना है कि किस कंडीशन में आप u की वैल्यू 0 लेंगे, किस कंडीशन में v की वैल्यू 0 होगी, किस कंडीशन में g की वैल्यू पॉजिटिव होगी और किस कंडीशन में g की वैल्यू नेगेटिव होगी। क्लियर। और भी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको इस पॉइंट से मिलने वाली है, तो हम इसको केस 1, 2 एंड 3 के रिस्पेक्ट में स्टडी करते हैं। ओके, द केस नंबर 1 इज when body fall freely from a height, that means the case of free fall, क्या होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट किसी एक सर्टेन हाइट से उसको हम फ्रीली ड्रॉप करते हैं, दैट मीन्स एक हाइट से इसको हमने ड्रॉप किया, थ्रो नहीं किया है, ड्रॉप किया है, ठीक है। सेकेंड क्या है, when body is thrown vertically downward from a height, that means एक हाइट से ऑब्जेक्ट को मैंने थ्रो किया, ठीक है। फ्रीली ड्रॉप करना और थ्रो करना, देयर आर डिफरेंट टास्क, बोथ आर डिफरेंट, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन देम, आई विल taught you later within a 2 minutes। and the case number 3 is when a body is thrown vertically upward direction, what is the meaning of this, that means आप ग्राउंड से किसी बॉडी को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर द ग्रेविटी, ये तीनों केसेस में क्या होंगे ये हमको डिस्कस करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं इस कंडीशन को डिस्कस करते हैं। व्हेन बॉडी फॉल फ्रीली फ्रॉम ए हाइट, सपोज दैट ये आपकी कोई एक बॉडी है और ये आपका ग्राउंड का सरफेस है, ये है ग्राउंड, राइट। अब इस बॉडी को आपने यहाँ पे होल्ड करके रखा है, ओके, दैट मीन्स यहाँ से आपने इसको होल्ड करके रखा है इस तरीके से, मीन्स आपका ये हैंड है, हैंड से आपने इसको पकड़ के रखा था,
होल्ड करके रखा था, ठीक है, ये आपका हैंड, हाँ बहुत अच्छा फिगर नहीं बना है बट ठीक है, ओके। अब आपने क्या किया कि इसको फ्रीली ड्रॉप कर दिया, फ्रीली ड्रॉप किया दैट मीन्स जैसे आपने इसको पकड़ के ऐसे होल्ड करके रखा था, आपने इसको फ्रीली ड्रॉप कर दिया, तो ये क्या करेगा, अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, दैट मीन्स ये वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन करना स्टार्ट करेगा, क्लियर, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन मोशन करना स्टार्ट किया। जब आपने इसको होल्ड करके रखा था, इस केस में होल्ड करके रखा था, उस कंडीशन में इसकी पोजीशन क्या थी, रेस्ट पोजीशन थी, और आपको पता है रेस्ट पोजीशन में इनिशियल स्पीड क्या होती है, 0, राइट। एंड अब बात करते हैं जी की वैल्यू क्या होगी, v की वैल्यू 0 नहीं होगी, क्यों, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट मोशन करना स्टार्ट कर, दैट मीन्स उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, कहां तक इंक्रीज करेगी, जब तक वो ग्राउंड पे टच नहीं कर जाएगा, ठीक है, दैट मीन्स v की वैल्यू 0 नहीं होगी। दूसरी बात आती है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ g, आइदर यू टेक द पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू। गाइस यू ऑल आर नो द एक्सीलरेशन किस कंडीशन में हो रहा है, दैट मीन्स एक्सीलरेशन की डायरेक्शन ग्राउंड के सेंटर की तरफ ही होगी, क्यों, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट है, और उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, दैट मीन्स फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू ग्रेटर देन होगी किससे, इनिशियल वेलोसिटी से, और इस केस में जी की वैल्यू फिर मिलेगी क्या, दैट मीन्स एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या मिलेगी, पॉजिटिव, ओके, बात समझ में आई, क्लियर। अब आपके क्वेश्चन में जो भी डाटा दिया गया होगा उसमें इस कंडीशन में अगर फ्रीली फॉल हो रहा है या फ्रीली आप ड्रॉप कर रहे हैं, किसी भी क्वेश्चन में ऐसा वर्ड यूज किया जाता है, तो वहां पे g की वैल्यू आप पॉजिटिव यूज करेंगे और u की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, उसके अकॉर्डिंग आपके इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे, राइट, क्लियर है गाइस। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड केस, व्हेन बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम ए हाइट, वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम ए हाइट थ्रोन, दैट मीन्स अब आपने ऑब्जेक्ट को क्या किया, ये आपका ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को आपने डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या किया है, थ्रो किया है। जब थ्रो करेंगे तो इस केस में u की वैल्यू, दैट मीन्स आपने इसको इनिशियल स्पीड प्रोवाइड की है, दैट मीन्स u की वैल्यू 0 नहीं लेना है, क्लियर। बाकी जो भी केसेस आप फर्स्ट में यूज किए हैं सेम आपको यहाँ पे भी यूज करना है, ये आपका हो जाएगा ग्राउंड। तो फर्स्ट केस में क्या था, u की वैल्यू 0 थी, बट अगर आपने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है तो u की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, 0 इस केस में नहीं लेना है, एंड g की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव ही होगी, क्यों, क्योंकि v की वैल्यू इंक्रीज करेगी, फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू इंक्रीज करेगी, ठीक है। ये पॉजिटिव क्यों हो रहा है, यहां लिख सकते हैं आप, क्यों, v इज इंक्रीजेस, दैट मीन्स फाइनल वेलोसिटी इज इंक्रीजेस, दैट्स व्हाई वी टेक द वैल्यू ऑफ g इज पॉजिटिव। यहां पे भी सेम आपका हो जाएगा, v इज इंक्रीजेस। अभी आप ये क्वेश्चन में जब आएगा तो वहां पे आपको और भी क्लियर हो जाएगा, दैट्स व्हाई वी टेक द वैल्यू ऑफ कैपिटल G इज पॉजिटिव, राइट। केस नंबर थर्ड, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस, ओके। इस पे देखिए केस, इसमें तो आपको सिंपल वैल्यू मिल गई, बट यहाँ पे थोड़े से आपको चेंजेस मिलेंगे। क्या कंडीशन है, व्हेन द बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, ध्यान से समझिएगा, हमने ये सपोज किया कि ये आपका कोई एक ग्राउंड है, दैट मीन्स अर्थ का सरफेस है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको आपको क्या करना है, थ्रो करना, किस डायरेक्शन में, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, तो ये इसको ऊपर थ्रो करना है, दैट मीन्स आप तो इस पे कुछ ना कुछ फोर्स अपनी तरफ से अप्लाई करेंगे, एक्सटर्नल फोर्स। अगर आपने फोर्स अप्लाई किया है तो अभी इसकी कंडीशन क्या है, रेस्ट पोजीशन में, बट जैसे ही आपने थ्रो किया पोजीशन इसकी चेंज हो रही है, दैट मीन्स आपने इसको प्रोवाइड किया क्या, इनिशियल वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी आपने प्रोवाइड किया, हमने ये सपोज किया ये ऑब्जेक्ट मोशन करता हुआ एक फिक्स्ड हाइट h पे पहुंचता है, कहां पहुंचता है, इट गॉट ए हाइट दैट इज h, क्लियर। अब इस h पे जाएगा, जैसे मैं अगर इस मार्कर को थ्रो करूं तो ये क्या होगा, एक सर्टेन हाइट तक जाएगा, बट जिस स्पीड से मोशन करना स्टार्ट किया है इसकी स्पीड क्या होगी, जैसे जैसे डिस्टेंस कवर करेगा स्पीड क्या होगी, रिड्यूस्ड होगी। व्हाई, द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज रिड्यूस्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली इन अपवर्ड डायरेक्शन, बिकॉज द अर्थ अप्लाइड ए फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट which is opposite to the direction of motion of the object. That means the force applied by the earth, the direction of the force applied by the earth is vertically downward direction, but the object will move in vertically upward direction, both are different. That's why the speed of the object is continuously reduced. Okay,
और आपको मिलेगा क्या, एट ए सर्टेन हाइट आपको ये मिलेगा, ये इस ऑब्जेक्ट की फाइनल स्पीड जो होगी वो क्या होगी, 0। दैट मीन्स एक पीक पॉइंट आपको मिलेगा जिसको आप बोलेंगे मैक्सिमम हाइट, जिसको आप बोलेंगे क्या, मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट पे ये जो आपको h मिल रहा है ये इसकी मैक्सिमम हाइट होगी, जहां पे इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। राइट है, क्लियर है गाइस, ओके। और इस केस में g की वैल्यू क्या होगी, इस केस में g की वैल्यू भी क्या होगी, निगेटिव होगी। आई बात समझ में। इसके बाद फिर ये ऑब्जेक्ट यहां पे रुकेगा नहीं, फिर ये मोशन करना स्टार्ट करेगा किस डायरेक्शन में, ये अब आपका हो जाएगा फ्री फॉल की कंडीशन। दैट मीन्स केस नंबर फर्स्ट आपका होल्ड करेगा, और केस नंबर फर्स्ट होल्ड करेगा तो इस केस में u की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 एंड g की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। राइट, ये बात समझने वाली थी यहाँ पे कि जब आप वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करेंगे तो इनिशियल स्पीड उसकी 0 नहीं होगी। दैट मीन्स फर्स्ट केस में u की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 एंड वैल्यू ऑफ g इज टेकन एज नेगेटिव। वाई वैल्यू ऑफ g इज टेकन नेगेटिव बिकॉज द वैल्यू ऑफ फाइनल वेलोसिटी इज ऑलवेज डिक्रीजेस। डिक्रीज क्यों करेगा ये भी मैंने आपको बताया, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज अपोजिट टू द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर। और जिस हाइट को ये अटेन करेगा वो क्या होगी, मैक्सिमम हाइट होगी। तो मैक्सिमम हाइट की वैल्यू क्या होगी ये आप फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए आप डायरेक्ट थर्ड इक्वेशन से यूज करके कर सकते हैं, या आप इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला भी डिराइव कर सकते हैं। ओके, फार्मूला क्या होगा देखते हैं। At a maximum height, at a maximum height, value of v is 0. Then from third equation क्या मिल जाएगा, थर्ड इक्वेशन देखिए, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। v स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट मीन्स v की वैल्यू वहां पे क्या है, 0, तो 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। दैट मीन्स 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 और g की वैल्यू क्या लेनी है, नेगेटिव। दैट मीन्स माइनस टाइम्स ऑफ g इंटू h, और ये h है क्या, h मैक्स, मैक्सिमम हाइट। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो h मैक्स इज इक्वल टू, देखिए यहाँ माइनस साइन है, लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर करेंगे तो पॉजिटिव में चेंज होगा, और 2g मल्टीप्लीकेशन में है, इसको ट्रांसफर करेंगे तो ये आ जाएगा डिवीजन में, यू स्क्वायर अपान में 2g। दिस इज द फार्मूला फॉर द ऑब्जेक्ट टू अटेनिंग द मैक्सिमम हाइट। आप यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू पुट करके फाइंड आउट कर सकते हैं, इधर आप थर्ड इक्वेशन का यूज करके सेम कॉन्सेप्ट से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अब देखिए कुछ पॉइंट और मैं आपको बताता हूँ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, टाइम ऑफ ascent AS इज इक्वल टू द टाइम ऑफ डिसेंट। ये क्या होता है, टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट क्या होता है, एक नया वर्ड आपको मिल गया। टाइम ऑफ एसेंट इज द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू अटेनिंग द मैक्सिमम हाइट। दिस इज द time known as the time of ascent. Once again I want to repeat, the time of ascent is the time taken by the object to attaining the maximum height from the ground. That means इस ground से maximum height को attain करने में जितना time object लेगा उसको बोलते क्या है, time of ascent. Clear? Then what is the time of descent? The time taken by the object to reaching the ground from a peak point or from a maximum height. पॉइंट समझ लीजिएगा, जितनी टाइम इसको ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट को अटेन करने में लगेगा उसको बोलेंगे टाइम ऑफ एसेंट, और उस मैक्सिमम हाइट से फिर ग्राउंड पे आने में जितना टाइम लगेगा उसको बोलेंगे टाइम ऑफ डिसेंट। बोथ आर ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर। क्लियर, डेफिनेशन क्लियर है, टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, velocity of the object at a same height is always same.
सेम और इक्वल, दोनों में से आप कुछ भी बोल सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट ए सेम हाइट इज ऑलवेज इक्वल या ऑलवेज सेम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? सपोज दैट आपका ऑब्जेक्ट u वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट किया, दैट मीन्स आपने थ्रो किया, आपने इस पर्टिकुलर हाइट पे आपने फाइंड आउट किया ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। तो वेलोसिटी जाहिर सी बात है, अपोजिट नेगेटिव एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी रिड्यूस्ड होगी। इस पॉइंट पे जो भी वेलोसिटी इसकी अटेनिंग हाइट को कंडीशन में होगी, दैट मीन्स वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन जब आपने थ्रो किया है, मोशन अपवर्ड डायरेक्शन, उस कंडीशन में जो वेलोसिटी होगी, सेम वेलोसिटी आपकी जब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन मोशन करेगा तो इस पॉइंट पे पहुंचेगा। दोनों कंडीशन में इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये अपवर्ड डायरेक्शन की वेलोसिटी इज ऑलवेज इक्वल टू द डाउनवर्ड डायरेक्शन। दोनों की वेलोसिटी उस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होगी, सेम होगी। हाइट की बात की गई है और हाइट का मेजरमेंट आप यहाँ से नहीं करेंगे, हाइट का मेजरमेंट आपको कहाँ से करना होगा, ग्राउंड से, ठीक है। ग्राउंड से ऑब्जेक्ट की पोजीशन जिस पॉइंट पे आपने फाइंड आउट किया है, वेलोसिटी फाइंड आउट की है, वो आपकी हाइट होगी, नहीं ना कि आप डाउनवर्ड डायरेक्शन मोशन की कंडीशन में आप ऊपर से फाइंड आउट करिए कि मैक्सिमम हाइट ये थी तो यहाँ से नीचे कितना है। दिस इज नॉट द हाइट। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज मेजर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द ग्राउंड। दैट्स क्लियर, ओके। तो आई होप यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी वेल, ओके। एंड वी टेक द सम न्यूमेरिकल विच इज बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट। उसके बाद आपको और भी क्लियर हो जाएगा कि आप इसका न्यूमेरिकल में कैसे यूज करेंगे। क्लियर है गाइस, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ओके। तो चलिए देखते हैं न्यूमेरिकल। सबसे पहले तो आपके एग्जाम्पल जो बुक में दिए गए हैं उसको सॉल्व करेंगे और कुछ एडिशनल हम क्वेश्चंस भी यूज करेंगे, ओके। द एग्जाम्पल 10.2, ए कार फॉल्स फ्रॉम ए ledge एंड ड्रॉप to the ground in 0.5 second. Let g is equal to 10 meter per second square. For simplification, the calculation: first, what is its speed on striking the ground? Second, what is its average speed during the 0.5 second? And third is, how high is the ledge from the ground? That means एक कार है जो किसी एक हाइट से लेज से गिर जाती है, ड्रॉप होती है कहाँ पे, ग्राउंड पे, कितने टाइम में, 0.5 सेकेंड में। और जी की वैल्यू यहाँ पे जो आपको यूज़ करनी है वो होगी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट मीन्स ये फॉर द कैलकुलेशन को इजी करने के लिए यूज़ किया गया है। और नॉर्मली आप सरफेस पे अगर क्वेश्चन में जी की वैल्यू नहीं गिवन है तो आप नॉर्मली यूज़ करेंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इफ द वैल्यू ऑफ जी इज गिवन इन योर क्वेश्चन दैट इज 10, देन यू विल यूज द वैल्यू ऑफ जी इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। फर्स्ट आपको फाइंड आउट करना स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। दैट मीन्स फर्स्ट केस आपका जो अभी था फ्रीली फॉल हो रहा है, वही केस आपको यूज करना है। सेकंड, व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द 0.5। वी की वैल्यू ऑलरेडी जीरो होगी, सॉरी यू की वैल्यू जीरो होगी। वी आप फर्स्ट पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, फाइनली आपको वैल्यू मिल जाएगी। एंड लास्ट इज हाउ हाई इज द लेज फ्रॉम द ग्राउंड। दैट मीन्स जिस हाइट से कार फॉल्स हो रही है उसकी हाइट ग्राउंड से क्या है, ये आपको फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स एच की वैल्यू ही तो होगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें। एग्जाम्पल 10.2, गिवन दैट t time is equal to 0.5 second, value of capital G is 10 meter second की पावर -2, ओके। फ्रीली फॉल हो रहा है तो यहाँ से आपको मिलेगा u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। ये आप अंडरस्टूड है, ये आपको फाइंड आउट करना नहीं है, ये आपको कंफर्म होना चाहिए, ठीक है। अब आपको फर्स्ट फाइंड आउट करना है व्हाट इज इट्स स्पीड on striking the ground, मतलब क्या फाइंड आउट करना है, v की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, फाइनल वेलोसिटी इसकी फाइंड आउट करनी है। देखते हैं कैसे फाइंड आउट होगा। आपको फार्मूला देखिए, आपके पास कौन कौन सी वैल्यू है, g है, u है एंड t है। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन आप यूज करके v की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, u ऑलरेडी क्वेश्चन में है, g की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है और t की भी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो 3 फार्मूलेज जो आपके पास हैं उसमें से फर्स्ट इक्वेशन आप इजिली यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मिल जाएगा v इज इक्वल टू u प्लस जी टी। हाँ, एक चीज और देखिए, फ्रीली फॉल हो रहा है
इस कंडीशन में g की वैल्यू लेंगे क्या, पॉजिटिव लेंगे, राइट। पुट द वैल्यू ऑफ u इज 0 प्लस वैल्यू ऑफ g इज 10 इंटू वैल्यू ऑफ t इज 0.5, मल्टीप्लाई दिस, यू फाइंड द वैल्यू ऑफ v, दैट मीन्स स्ट्राइकिंग स्पीड ऑफ द कार, दैट इज 5.0 मीटर पर सेकेंड। स्पीड की स्पीड यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड। क्लियर, ये आपका फर्स्ट आंसर हो गया, राइट। सेकेंडरी आपको फाइंड आउट क्या करना है, सेकेंडरी फाइंड आउट करना है एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, u प्लस वी बाई 2। u की वैल्यू क्या होगी, क्वेश्चन में गिवन है 0, v की वैल्यू अभी आपने फाइंड आउट किया 5 अपान में 2, दिस इज इक्वल टू 5 बाई 2 इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड, राइट। ये आपका हो जाएगा सेकेंड आंसर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है गाइस। क्वेश्चन तो इसके बाद आपको मिलने वाले हैं जो मैं एडिशनल करवाने वाला हूं, ओके। एंड थर्ड आपको फाइंड आउट क्या करना है, थर्ड फाइंड आउट करना है हाउ हाई इज द लेस फ्रॉम द ग्राउंड। h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दैट मीन्स हाइट ऑफ फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है। h की वैल्यू फाइंड आउट करनी। अब देखिए कौन सा इक्वेशन आप यूज कर सकते हैं, आप दोनों इक्वेशन यूज कर सकते हैं, आइदर सेकेंड और थर्ड, तो हम थर्ड यूज करते हैं, ठीक है। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, ठीक है। u की वैल्यू देखिए क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी 0 और v की वैल्यू अभी आपने फाइंड आउट किया तो 5 और इसका स्क्वायर हो जाएगा क्या, 25 इज इक्वल टू 2 इंटू वैल्यू ऑफ g इज 10 इंटू h। तो यहाँ से h की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, h इज इक्वल टू 25 अपान में 20, दिस इज इक्वल टू 1.25। फाइनली आपको ये वैल्यू मिलेगी, ठीक है। 1.25 और हाइट फाइंड आउट करना है, तो मतलब ये क्या हो जाएगा आंसर मीटर में आपका। ये आपका हो गया थर्ड आंसर, राइट है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, आंसर आपके यही आ रहे होंगे, ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल 10.10। एग्जाम्पल 10.3 है, एग्जाम्पल 10.3, ओके। गिवन दैट an object is thrown vertically upward and rises to a height of 10 मीटर। दैट मीन्स ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, ग्राउंड पे है, इसको वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया जाता है और कहाँ तक जाता है, ये एक ऐसे हाइट पे जाता है जिसकी हाइट गिवन है 10 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, ओके। कैलकुलेट द वेलोसिटी विद विच द ऑब्जेक्ट वाज थ्रोन अपवर्ड, दैट मीन्स अपवर्ड डायरेक्शन में किस वेलोसिटी से ये थ्रो किया गया है, u की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सेकेंड, टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, दैट मीन्स यहाँ से इस पॉइंट पे पहुँचने में इसको कितना टाइम लगा है, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो आपका है थर्ड केस पे बेस्ड है, तो देखिए क्या है। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज गिवन दैट इज 10 मीटर, राइट। मैक्सिमम हाइट पे पीक पे पहुंचेगा तो इस कंडीशन में आप v की वैल्यू क्या यूज करेंगे, 0 मीटर पर सेकेंड, ओके। क्लियर है। g की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आप यूज क्या करेंगे, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फर्स्ट आपको फाइंड आउट करना है इनिशियल स्पीड, सेकेंड फाइंड आउट करना है टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीचिंग द मैक्सिमम हाइट, ओके। अब देखिए u की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, u की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपके पास है क्या, g है, v है और h है, g, v और h। u की वैल्यू फाइंड आउट करते हो, g, h और v आपके क्वेश्चन में है, तो थर्ड इक्वेशन का यूज करके आप फाइंड आउट इजिली कर सकते हैं। तो यहां से आपको मिल जाएगा फ्रॉम थर्ड इक्वेशन,
वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2GH। हाँ, एक चीज और देखिए, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में आपने थ्रो किया है तो इस केस में g की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव। क्यों? क्योंकि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होगा। ठीक है, दैट मीन्स इसकी वेलोसिटी क्या होगी, रिड्यूस्ड हो रही है, वेलोसिटी फाइनल रिड्यूस्ड हो रही है, तो उस कंडीशन में निगेटिव एक्सेलरेशन होगा। क्लियर है? तो यहाँ से आपको वैल्यू जो मिल जाएगी, आप यहाँ माइनस यूज कर सकते हैं, या जब आप g की वैल्यू पुट करेंगे तो -9.8 पुट करेंगे। ओके, तो v की वैल्यू दिस इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ u आपको फाइंड आउट करना है, u स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी की वैल्यू माइनस टाइम्स ऑफ 9.8 इंटू वैल्यू ऑफ h इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट इज द 10। ओके, ये देखिए यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लीकेशन होगा तो माइनस साइन आएगा, इस माइनस साइन के साथ हम इसको ट्रांसफर करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो फाइनली आपकी जो वैल्यू मिल जाएगी यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 9.8 इंटू 10। माइनस रिमूव हो गया, क्यों? क्योंकि यहाँ से आपने राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में इसको क्या किया, ट्रांसफर कर दिया। ओके, तो वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन करेंगे, देखिए मल्टीप्लीकेशन करेंगे 10 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो डेसिमल रिमूव हो जाएगा, और ये 2 से इस पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फाइनली आपको वैल्यू कितनी मिल जाएगी, ये मिल जाएगी 196। ठीक है, तो u की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे अंडर रूट 196, और ये स्क्वायर रूट होता कितने का है, 14 का। u है दैट मीन्स इनिशियल स्पीड है, तो यूनिट क्या बनेगी, मीटर पर सेकेंड। दिस इज द आंसर, राइट। नेक्स्ट है आपका सेकेंड पॉइंट फाइंड आउट करना है, टाइम टेकन। t की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो t की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए देखिए आपके पास u मिल गया और v क्वेश्चन में ऑलरेडी है, g की वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन है, तो t की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आप फर्स्ट इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वैल्यू आपकी मिल जाएगी फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस gt, वैल्यू ऑफ v इज 0, वैल्यू ऑफ u इज 14 अभी आपने फाइंड आउट किया, प्लस g की वैल्यू माइनस टाइम्स ऑफ 9.8 इंटू टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए -9.8 इंटू टी है, ठीक है, तो इसको आप ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा 9.8 टी इज इक्वल टू 14। ओके, वैल्यू ऑफ टी इज इक्वल टू 14 अपान में 9.8 आर दिस इज इक्वल टू 140 अपान 98। क्लियर गाइस, इसको आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आपको कितनी मिलने वाली है, देखिए इसको आप 4 से डिवाइड कर सकते हैं, नहीं 4 से नहीं 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8 और ये हो गया 18 तो 9 हो गया, यहाँ से आप डिवाइड करेंगे 7 0 आ जाएगा। अब देखिए 7 1 जा 7 7 7 जा 49 दिस इज इक्वल टू 10 अपॉन में 7 और दिस इज इक्वल टू 10 से डिवाइड 10 में डिवाइड करेंगे 7 से तो ये आ जाएगा 1 पॉइंट कैरी हो गया 3 30 हो गया तो 4 टाइम्स जाएगा 28 फिर 2 टाइम्स जाएगा 14। ठीक है, तो ये फाइनली आपको जो वैल्यू मिलने वाली है वो 2 पॉइंट करके आएगा, राउंड अप आप करेंगे तो ये हो जाएगा 1.43 और टाइम क्या है तो यूनिट क्या हो जाएगी सेकेंड। तो फाइनली टी की वैल्यू क्या मिल गई आपको 1.43 सेकेंड, राइट। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है, तो दोनों एग्जाम्पल मैंने आपको सॉल्व करके बता दिए। अब हम इस पे बेस्ड कुछ और एडिशनल क्वेश्चंस आपको करवाते हैं जो डिफरेंट टाइप के होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। Okay guys, we are taking the 2 new different type of questions. The first one is a particle is dropped from a tower 180 meter high. How long does it take to reach the ground and what is the velocity when it touches the ground? Clear? एक कोई पार्टिकल है जिसको 180 मीटर का एक टावर है वहां से ड्रॉप कर आते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कराने के बाद ग्राउंड को टच करने में कितना टाइम लगेगा और वो किस वेलोसिटी से ग्राउंड को टच करेगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। दूसरा क्वेश्चन है टू एस्टिमेट द हाइट ऑफ ए ब्रिज ओवर ए रिवर। दैट मीन्स एक ब्रिज है जो एक सर्टेन हाइट पे रिवर से है, ठीक है,
ए स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रीली ऑन द रिवर फ्रॉम द ब्रिज, एक स्टोन को हम उस ब्रिज से ड्रॉप करते हैं जो रिवर में जाके उसके सरफेस को टच करता है, उसके रिस्पेक्ट में आपको फाइंड आउट करना है क्या कि हाइट ऑफ द ब्रिज फ्रॉम द सरफेस ऑफ द रिवर। दैट मीन्स जो रिवर का सरफेस है उस सरफेस से उस ब्रिज की हाइट कितनी है जी आपको फाइंड आउट करना है। राइट, क्लियर है? तो चलिए देखते हैं सोल्यूशन। फर्स्ट का सोल्यूशन आपको फाइंड आउट करना है, देखते हैं। गिवन दैट ए पार्टिकल इज ड्रॉप्ड, जैसे ही आ गया पार्टिकल इज ड्रॉप्ड, you know very well that means initial speed of the object is 0. You always take this u is equal to 0 when the object is dropped, right? From a tower 180 मीटर, वो टावर की हाइट कितनी है 180 मीटर, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस कवर करेगा, हाइट कवर करेगा, वो कितनी होगी 180 मीटर, राइट? टू रीच द how long does it take to reach the ground, what is the velocity when it touches the ground, that means आपको t की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ वैल्यू ऑफ g इज इक्वल टू क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये वैल्यू होगी क्या पॉजिटिव। फर्स्ट आपको फाइंड आउट करना है t, टाइम कितना लगेगा उस ऑब्जेक्ट को ग्राउंड में पहुंचने में, और वो किस वेलोसिटी से ग्राउंड को टच करेगा, ठीक है? तो हम थर्ड इक्वेशन का यूज करते हैं। फ्रॉम थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, पुट द वैल्यू u इज 0 प्लस 2 इंटू प्लस 10 इंटू h इज 180 मीटर। फाइनली आपको वैल्यू मिल जाएगी 18 टू जा 36 और 2 0 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3600। दिस इज द वैल्यू ऑफ v स्क्वायर एंड v इज इक्वल टू अंडर रूट 3600। दिस इज इक्वल टू वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, इसको आप लिख सकते हैं अंडर रूट 60 मल्टीप्लाइड बाई 60, और फाइनली जो वैल्यू आपको मिलने वाली है दिस इज इक्वल टू 60 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द फर्स्ट आंसर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है गाइस। ओके, सेकेंड पॉइंट आपको क्या फाइंड आउट करना था, टाइम, टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस u प्लस जी टी। v की वैल्यू अभी आपने फाइंड आउट किया दैट इज द 60 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ u इज 0 प्लस g की वैल्यू t 10 इंटू टी। तो यहाँ से आप फाइंड आउट करेंगे t इज इक्वल टू 60 अपॉन में 10 हो जाएगा, तो t की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी 6 सेकेंड। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर? क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 गिवन दैट, क्या क्वेश्चन में गिवन है, टू एस्टिमेट द हाइट ऑफ ए ब्रिज ओवर ए रिवर ए स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रीली ऑन द रिवर। ड्रॉप्ड फ्रीली, तो यहीं से आपको मिल गया वैल्यू ऑफ u इज 0 मीटर पर सेकेंड। ओके, द स्टोन टेक्स 2 सेकेंड टू टच द वाटर सरफेस, दैट मीन्स 2 सेकेंड में वो ऑब्जेक्ट वाटर के सरफेस को टच करता है, ठीक है? कैलकुलेट द हाइट ऑफ द ब्रिज, आपको हाइट ऑफ द ब्रिज फाइंड आउट करना है, ठीक? तो यहाँ से u की वैल्यू क्या फाइंड आउट करना है, हाइट ऑफ द ब्रिज। हाँ, g की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये देखिए ड्रॉप किया गया है ऑब्जेक्ट को, तो ये एक्सेलरेशन क्या होगा इसका पॉजिटिव। फाइंड आउट आपको फाइनली क्या करना है, h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हाइट फाइंड आउट करना है। तो अब हाइट फाइंड आउट करने के लिए देखिए आपके पास कौन सा फॉर्मूला यूज किया जा सकता है, h की वैल्यू h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यू वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, t भी है g भी है, यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन h that means height is equal to ut plus half gt square, put the value of u is 0 into t की वैल्यू 2 सेकेंड, this multiplied by 2 plus 1 upon में 2 into value of g is 9.8 into t square, that means 2 का स्क्वायर 2 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1 upon में 2, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 में 0 हो जाएगा,
इंटू 9.8 इंटू 2 इंटू 2, ये देखिए 1 एक 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। 9.8 में 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, 8 2 जा 16, 9 2 जा 18, 1 कैरी था तो उसको आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 19, 196 और 1 प्लेस पे डेसिमल तो 19.6 मीटर ये आपकी हाइट हो जाएगी, हाइट ऑफ द ब्रिज फ्रॉम द सरफेस ऑफ द रिवर। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? ओके, ये फाइनल आपका आंसर था, ये आपके क्वेश्चंस थे। क्वेश्चन में यहाँ पे मैंने ऑलरेडी रख रखा है। आई होप यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड वेरी वेल ऑफ टुडे टॉपिक एंड यू आर एबल टू सॉल्व द न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस topic and you practice more and more questions. If you have any problem then you can ask me freely and also give your feedback in the comment sections. Thank you for watching this video.